Hello students, let us continue our unit, that is the solubility of drugs. So first is mechanism of solute-solvent interaction. So when a solute dissolves in a solvent, thus we can say that there is present an attractive force between the solute and solvent molecules. Thus, this force of attraction that is present between the solute and solvent is an important parameter which plays role in order to dissolve solute in the solvent. And thus we can also say that the process of solubilization involves the relative strength of the following three intermolecular attractive forces. So these attractive forces are the attractive forces between solute molecule, attractive forces between solvent molecule, and attractive forces between solute and solvent molecule. दस अगर अब हम इंडिविजुअली अगर हम बात करें किसी जैसे सल्यूट की, तो जो सल्यूट के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा, और जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है उनके आपस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा. सो there will be a bond formation between the solute and solvent only when it is able to overcome the attractive force that is present between the solvent molecule and the solute molecule. ठीक है, तो तभी जो है solute आपका solubilize होगा सॉल्वेंट में, तभी एक सोल्यूट मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन होगी एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, जबकि उनका अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा दैट इज एबल to overcome the attractive force that is already present between these solvent molecule and the solute molecule. और अगर जो ये आपका solute and solvent है, अगर इनका attractive force कम है as compared to the attractive forces that is present between solvent molecule and solute molecule, तो क्या होगा, ये जो इनका बॉन्ड है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो और जो सोल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो वो जो है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा. तो जो सोल्यूट है that will not be able to interact with the solvent. So thus we consider all three attractive forces in the interaction of solute and solvent. Thus, in the interaction between solute and solvent, the concept traditionally follows two rules. First is polar solute dissolves in polar solvent. What are the polar compounds? In which there is unequal sharing of electron and in which there is present a dipole moment. So, if the solute is of polar nature and also solvent is of polar nature, then the interaction between solute and solvent will be easily. And in similar way, if the solute is of non-polar nature and solvent is also of non-polar nature, then this non-polar solute will easily dissolve in non-polar solvent. This is because there are similar types of intermolecular forces between solute-solvent, solute-solute and solvent-solvent. Thus, a good solvent is selected on the principle of the like dissolves like. That is, a solute dissolves best in the solvent with similar chemical properties. Thus, a polar solvent dissolves ionic solutes and other polar substances, and the water mixes in all proportion with alcohol and dissolves sugars and other polyhydroxy compounds, because there is the similarity in the chemical property of this solute and solvent molecules. A scientist named Hildebrand showed, however, that a consideration of dipole moment alone is not adequate to explain the solubility of polar substances in water. तो हाइल्ब्रैंड ने क्या कहा कि डायपोल मूवमेंट जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ पोलर सब्सटेंस इन वाटर. जो कि हम क्या कहते हैं कि अगर आपका सब्सटेंस पोलर नेचर को होगा दैट विल डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट. तो
There is one more thing that is far more significant that explains the solubility of a compound. And what is that? That is the ability of the solute to form hydrogen bonds. तो अगर कोई solute की ability है solvent के साथ hydrogen bond form करने की, तो in that case there will be the better solubility of that compound in a solvent. Thus, we can say that the water dissolves alcohols, aldehydes, ketones, amines, and other oxygen and nitrogen containing compounds that can form hydrogen bonds with water. So, this hydrogen bonding is one of the important parameter that is important for the solubility of a compound. And one more factor that also influences the solubility is the acidic and basic character of the constituents. So these are the various points on the basis we can explain the solubility of a compound. It has been also studied that the solubility of a substance also depends on structural features such as the ratio of the polar to the non-polar group. For example, as the length of a non-polar chain of an aliphatic alcohol increases, the solubility of the compound in water decreases. तो अगर आपके पास क्या है, कोई एलिफेटिक अल्कोहल है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल जो कि OH ग्रुप है दैट इज ऑफ हाइड्रोफिलिक नेचर, तो उस OH ग्रुप के साथ फर्दर क्या है, एक अल्काइल चेन अटैच्ड है, वो जो अल्काइल चेन है दैट इज ऑफ नॉन पोलर नेचर। तो जैसे जैसे उस अल्काइल चेन की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, उसमें नॉन पोलर कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो दैट्स वाई उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो भी इफेक्ट करता है solubility of a substance. Next topic is ideal solubility parameter. Solubility parameter is a numerical value that indicates the relative solvency behavior of a specific solvent. So ideal solubility parameter के basis पे आप ये find out कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक particular liquid है तो उसकी किस तरह की solvent property है, कि एक पर्टिकुलर सोल्यूट के लिए वो एक गुड सॉल्वेंट है या फिर वो सोल्यूट उसमें सॉल्युबलाइज होगा नहीं होगा। तो वो बिहेवियर को हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट which is based on the concept that the solvent power of a liquid is influenced by its intermolecular cohesive forces, and that the strength of these forces can be expressed in terms of a solubility parameter. तो जो एक solvent है उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो उसका सॉल्वेंसी बिहेवियर है, वो किसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट करता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इतना होना चाहिए कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसको वो ब्रेक कर पाए, उसको वो ओवरकम कर पाए। तो इसी कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी के बेसिस पे, इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कोहेसिव फोर्सेस के बेसिस पे हम एक सॉल्वेंट की सॉल्वेंसी बिहेवियर को फर्दर डिटरमाइन कर सकते हैं। And this solubility parameter was proposed by the scientist H. Hildebrand and thus referred as Hildebrand solubility parameter, which is denoted by the symbol delta. Now the formula that we use to calculate the solubility parameter for the solvent is delta is equal to square root of delta H minus RT upon Vm, in which delta H is the heat of vaporization, Vm is the molar volume,
R is the gas constant and T is the temperature. So in this equation आपके पास क्या है यहाँ पे डेल्टा H, जो कि क्या है हीट ऑफ वेपराइजेशन. और हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड टू अ लिक्विड सबस्टेंस टू ट्रांसफॉर्म अ क्वांटिटी ऑफ दैट सबस्टेंस इनटू अ गैस. मीन्स कि अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, उसमें क्या है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में एक कोहेसिव एनर्जी प्रेजेंट है, कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट है. तो अब आप क्या कर रहे हो, उसको एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको लाइक हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि वो सॉल्वेंट जो है, वो जो लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में. तो वो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स कि जो उसमें इनिशियली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जो पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट थे, जो वहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट था, अब वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. तो जब वो ब्रेक हो रहा है, तो आफ्टर दैट that liquid gets converted into the gas. So in similar way, अगर आपके पास कोई solvent है, तो अगर आप उसमें क्या कर रहे हो, सल्यूट ऐड कर रहे हो, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो अब अगर वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सल्यूट के साथ. तो दैट मीन्स कि क्या है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट था, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रहा है, क्योंकि अब वो जो एनर्जी है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, इन द सॉल्वेंसी. ठीक है, एक सोल्यूट को सॉल्युबलाइज करने में अब वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है. तो ये जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है एक सोल्यूट को सॉल्युबलाइज करने में, इट इज द सिमिलर एनर्जी दैट वी give to a liquid to convert it into the gaseous phase. तो इसीलिए हमने अगर इस एनर्जी को फाइंड आउट करना है, अगर हमने ये एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, उसको हम किसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए. क्योंकि हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी क्या हो रहा है, आप एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो बॉन्ड है, वो ब्रेक हो रहा है और वो दूसरे स्टेट में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है. तो सिमिलर चीज इसमें भी हो रही है कि जब आप सल्यूट ऐड कर रहे हो किसी सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट के आपस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था, जो बॉन्ड वहाँ पे था, वो ब्रेक हो रहा है. तो अब वो एनर्जी जो है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, वो किस में यूटिलाइज हो रही है, एक सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज करने में. तो इसीलिए इस आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो इसी तरह से इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सॉल्वेंट्स का सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. तो आपके पास एक स्पेक्ट्रम आएगा सॉल्वेंट्स का हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटी पैरामीटर वैल्यूज. लाइक जैसे आपका यहाँ पे एन पेंटीन है, इसका जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर वैल्यू है दैट इज 7, एन हेक्सेन है दैट इज 7.24, फिरोइन है दैट इज 7.25. इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट्स है जिनका क्या है, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर दिखाया गया है. तो अब फर्दर इस सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का क्या एप्लीकेशन है, फर्दर हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो इसका यूज ये रहता है कि सपोज आपके पास कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड सॉल्युबलाइजेस इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. ठीक है, सपोज आपके पास कोई एक कंपाउंड है यहाँ पे दैट सॉल्युबलाइजेस इन द एसीटोन. ठीक है, यहाँ पे जैसे दिस इज द एसीटोन हैविंग सॉल्युबिलिटी पैरामीटर 9.77. अब सपोज आपके पास अगर एसीटोन नहीं है सॉल्वेंट, देन यू हैव टू गो फॉर अदर सॉल्वेंट. तो वो सॉल्वेंट आप किसके बेसिस पे चूज कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर. तो आप ये देखोगे कि अगर एसीटोन का सॉल्युबिलिटी पैरामीटर 9.77 है, देन which solvent can we use having the same solubility parameter, और जिसकी solubility parameter जो है that is approximate to the acetone. जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया मिथाइल इथाइल कीटोन का, उसका जो solubility parameter है that is around 9.27, जो किसके नियर बाय है,
9.77 के, या फिर यहाँ पे डाई एसीटोन अल्कोहल है हैविंग सॉल्युबिलिटी पैरामीटर 10.18, तो इसका सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का वैल्यू जो है वो भी किसके आसपास है, 9.77 के आसपास, ठीक है। तो दैट शोज कि जो आपका कंपाउंड एसीटोन में सॉल्युबलाइज हो सकता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट कौन सा सॉल्वेंट हो सकता है, आइदर यू कैन टेक मिथाइल इथाइल कीटोन और यू कैन ऑल्सो टेक डाई एसीटोन अल्कोहल। सो इस तरह से हम एक सॉल्यूट के लिए एक सॉल्वेंट चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द solubility parameter. Next is the solvation. Solvation is the process of interaction of the solvent molecules with molecules or ions of a solute. In the process of solvation, ions or molecules of solute are surrounded by a concentric shell of the solvent. So solvation में क्या होगा कि if you dissolve a solute in a solvent, तो जो ये solvent के जो solute के molecules है that will get surrounded with the solvent molecule. जैसे suppose यहाँ पे example जो है that is of sodium chloride. So when you dissolve this sodium chloride suppose in water, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जो Cl negative है that is surrounded by the solvent molecules, and here this Na positive is again surrounded with the solvent molecules forming a concentric shell. तो ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन। एंड इन दिस सॉल्वेशन अगर आप वाटर यूज कर रहे हो, सो फॉर दैट केस द टर्म दैट वी विल यूज इज द हाइड्रेशन, ओके। एंड इन दिस सॉल्वेशन प्रोसेस जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट विल बी आइदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और देयर विल बी द van der Waal forces of attraction between the solute and solvent. So this process is known as the solvation. Now the association. In solutions, the term association is related to ion association, in which ions of opposite electrical charges come together in solution to form distinct chemical entity. So in association what happens, अगर किसी solute को जैसे dissolve किया जाता है solvent में, so in that solution अगर solute के oppositely charges है तो they will try to approach each other. So वो क्या होंगे, due to this they will associate with each other. तो इस process को हम क्या कहेंगे, association. So association is classified according to the number of ions that associate with each other. For example, ion pair और ion triplet means अगर दो ions आपस में associate हो रहे हैं, that will be known as ion pair. और अगर like 3 ions आपस में associate हो रहे हैं, that will be the ion triplets. This ion pairs are of 3 distinct types. means अगर हम ion pair की बात करें तो 3 types का है ये. First one जो है that is fully solvated. Fully solvated में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं there is this red one is of 1 charge and blue जो है ion है that is of अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो अब ये क्या कहेंगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस है दे विल ट्राई टू अप्रोच ईच अदर, ठीक है। बट फुली सॉल्वेटेड में क्या होगा कि इन दोनों आयंस के अराउंड जो है एक प्रॉपर सॉल्वेंट की एक लेयर प्रेजेंट है, एक प्रॉपर सॉल्वेंट की शीट प्रेजेंट है। ड्यू टू दिस जो ये दोनों अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है वो जो है वो प्रॉपरली एसोसिएट नहीं हो पाएंगे, दैट विल रिमेन सेपरेटेड। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, दिस इज द ड्यू टू द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि जब हम, जैसे अभी मैंने सॉल्वेशन में आपको पीछे बताया कि अगर जब सल्यूट जो है आप उसको सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व करते हो, वो सॉल्वेंट क्या करता है उसके अराउंड एक शीट बनाता है, ठीक है। तो अब ये शीट क्या करेगा, एक आयन को दूसरे आयन से सेपरेटेड फॉर्म में रखेगा। मींस कि इसकी जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी जो है दैट इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो है दैट इज हाई। इसकी टेंडेंसी है कि वो आयंस को एसोसिएट नहीं होने देगा। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या कहते हैं, फुल्ली सॉल्वेटेड। मींस कि इसमें आयंस है दे विल ट्राई टू अप्रोच ईच अदर बट ड्यू टू द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। सो दिस आयन पेयर इज नोन एज फुल्ली सॉल्वेटेड।
नेक्स्ट वन जो है दैट इज द सॉल्वेंट शेयर्ड और सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। तो इसमें आप देख सकते हैं अगेन जो आयन्स है अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स है दैट आर अगेन ट्राइंग टू अप्रोच ईच अदर। तो अब इन्होंने क्या किया है, इसमें क्या है कि जो सॉल्वेंट है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आयन्स है अपोजिटली चार्ज्ड आयन जो है यहाँ पे वो क्या होंगे, वो बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे बट स्टिल दे आर शेयरिंग अ सेम सॉल्वेंट शीट अराउंड देम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट शेयर्ड और सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। देन नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट आयन पेयर। तो इसमें क्या है कि ड्यू टू द लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द सॉल्वेंट, अब इसमें जो सॉल्वेंट की शीट बनी थी पहले इन आयंस के अराउंड दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट हैज नो टेंडेंसी टू सेपरेट दीज अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये दोनों अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है वो बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो इस टाइप के आयन पेयर को हम क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट आयन पेयर। According to the Coulomb's law, the electrical force between the charged bodies, or also said as electrostatic forces or also known as Coulomb's force, which is represented by F, is equal to this Q1 into Q2 upon epsilon r square. This means that according to the Coulomb's law, this electrostatic force, that is represented by ion association, will increase as, first is, with the if the magnitude of electrical charge, that is Q1 and Q2 increases। तो अगर इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आयन एसोसिएशन जो है दैट विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। Then second is this ion association will increase when the magnitude of dielectric constant decreases। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है तो उससे क्या होगा, जो आयन एसोसिएशन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन दीज टू अपोजिटली चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो आयन एसोसिएशन है वो कम होगा, जो कि अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करा है। एंड थर्ड वन इज द distance represented by r. So if the distance between ions decreases, then is possibility that the ion association will also increase. Thus, according to this law, the ion association depends on these three values. So that's all for the today's lecture. Thank you.